Hello all, as I told you that I will give you the solutions again, the sample paper 1 2023 to 24, which is issued by the CBSE. As we have done earlier we have done this, but some of the students are left over, those who have not done the sample paper. So again I am providing the solutions. In this first video we will cover part 1 and part 2, means section A and section B, the MCQs and the 2 marker questions. In this video I will cover those questions. Please do with me, and I hope after doing this you will have your doubts cleared. And again, if you have still any doubt you have, then you can tell me in the comments, or you can message me. So let's start with the first question. This is my first question. We have just wait for a second. This is the first question, that the value of x minus y plus z we have to tell from the following equation. We are given if you see, we are given two matrices here, x plus y plus z equals to 9, x plus z is equals to 5, and y plus z is equals to 7. You know, if two matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. So from here we can easily tell that x plus y plus z is equals to 9, and similarly my x plus z is equals to 5, and similarly my y plus z is equals to 7. I know this is a very simple question, you can easily solve this. By using these two, we can easily tell that value of y will be 4, and using first and last, again we can easily tell the value of x will be equals to 2. It's very obvious. And from here we can, again, if we put x and y in any of the equation, then we can easily put value of z is equals to, which is equals to 4. So what you need to tell me here, we are supposed to find the value of what? X minus y plus z. So just put your values here. It will be 2 minus 4 plus 3, which is equals to 5 minus 4, and which is value of this will be option 1. So the answer of this will be, correct option will be option C. The value of given matrix will be equals to 1. This is your first question. I hope it's clear to all. Now we move on to the next question. This is my question number 2. Question number 2 is what? We are given a matrix 3 cross 3 square matrix, and if we see the given matrix, we have, this is 5, we have diagonally 5 5 5. So we can take 5 common. 5 common if we take this 5 common, then we are left with just diagonally 1 1 1, and rest of all the elements will be 0. This all will be 0. This is my what we are given. Now what we need to find out, we are given, and we need to find out here the determinant of adjoint of this we need to find out, and we are already given this one. So if we see here, adjoint A, the things we are given, this is nothing but equals to 5 times I. This we are already given, and we know the formula of A of adjoint A. What is the formula? This I already discussed with you. This is nothing but determinant of A into I, and if we compare these two, you will have the value of determinant of A, which is equals to 5. आपको separately निकालने की जरूरत नहीं है. This you can easily tell. Now we need to find the value of this. जो हमें चाहिए, अब उस पर बात करते हैं. हमें बात चाहिए ये वाला. We are supposed to find out value of this one. So if we are, this also I discussed, ये भी मैंने आपको बताया है, that adjoint of A, if we are given any type of matrix, that is it should be square, 2 cross 2, 3 cross 3 और 4 cross 4. तो क्या होता है कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट होता है उसका ऑर्डर -1. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड. सो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू रख देंगे डिटर्मिनेंट की 5, और n का मतलब आपका ऑर्डर, n होता है आपका ऑर्डर. अगर आप देखो व्हाट ऑर्डर यू आर गिवन, ऑर्डर इज गिवन टू बी 3. सो यहाँ पे आप रखेंगे 3 माइनस करेंगे 1, and you will have the value of that will be 5 square, which is equals to 25. Now look for the options you have. This is your answer, and if you see this
option will be 25 of question number 2. I hope it's clear. Now we can move on to question number 3. Question number 3, if A and B are symmetric matrices of same order, then you need to find out the value of this. You need to rather note value, you need to tell me that it is square matrix, skew symmetric, symmetric, neither symmetric nor skew, or null matrix. And this is the but obvious question. This we have done all, we have discussed also again कि अगर आपको सिमेट्रिक बताना है या फिर आपने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, सीधी सीधी से आपने क्या बात करनी होती है, जो भी आपको दिया हुआ है whatsoever you are given A B, मैं यहाँ पे टी लिखा है, मैं डैश का यूज कर रही हूँ, मेरे को वही हैबिट है थोड़ा, आई एम हैबिचुएट ऑफ दैट, देन ट्वाइस ऑफ B A डैश, दिस वी आर गिवन. तो कुछ भी आपने दिया है, नॉट ओनली दिस वन, कुछ भी आपने दिया है तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसका ट्रांसपोज ले देना है. ट्रांसपोज लेने के बाद अब अप्लाई करना है प्रॉपर्टी A माइनस बी. अगर आप देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पहले भी आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो मैं लिख देती हूँ फिर से. ए बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलते हैं तो आपके पास आएगा ए बी डैश होल ट्रांसपोज माइनस 2b a dash whole transpose. This will be value. Now again, now these two are in now multiplication. So multiplication का क्या फॉर्मूला होता है, this also we know for the from the properties itself. a b dash is nothing but, जब multiplication होता है तो जो लास्ट में आएगा वो पहले आएगा और जो पहले था वो लास्ट में चला जाएगा. प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता, only in the case of multiplication. Now if you open it, it will be what? अब एक और प्रॉपर्टी होती है, इफ यू टेक ट्रांसपोज एंड डबल ट्रांसपोज, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, you will have the same thing. This is the third property. So all these three are properties. So what you'll have from here? From here we have B. If you see B transpose transpose, तो B सिर्फ B रह जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा इधर से A डैश, क्योंकि A के ऊपर तो कुछ नहीं था, वहाँ पे डैश आ जाएगा माइनस. अब 2 है अकेला, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ट्रांसपोज का, वो ऐसे ही रहेगा. और A ट्रांसपोज का जब दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो वही वैसे देगा और B दे देगा B ट्रांसपोज. ठीक है. अब अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आप इसको मैच करो तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपने ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का और आपके पास सेम चीज आ जाए तो वो सिमेट्रिक होती है. लेकिन अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो आपने ट्रांसपोज लिया और आप माइनस के साथ अगर उसको लेके आए तो वो स्क्यू होता है, दिस यू नो. बट अगर हम इसको मैच करें, वी हैव ए बी ट्रांसपोज एज वन टर्म, तो ए बी ट्रांसपोज जैसा मुझे दिख तो रहा है ये सेकंड वाला, बट उसके साथ 2 आ रहा है, सो वी आर नॉट मैचिंग दैट. और दूसरे की अगर बात करें बी ए ट्रांसपोज की, तो ये भी है बट उसके साथ 2 नहीं है. सो अगर हम देखें तो ना तो ये ए बन रहा है, ना तो ये हमारा गिवन बन रहा है, और ना ही ये हमारा बन रहा है माइनस के साथ गिवन. समझे बात को. तो ना तो सिमेट्रिक बनेगा ना स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा. तो ऑप्शन और जीरो नल का मतलब होता है, अगर हम ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, ये स्क्यू तो है नहीं, इसको तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ऑप्शन को, ये तो होगा नहीं. सिमिलरली यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं होगा. नल का मतलब होता है जीरो हो जाना, ये जीरो भी नहीं हो रहा, तो वी डिलीट दिस ऑप्शन ऑल्सो. नाउ द लास्ट ऑप्शन विल बी नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. सो दिस विल बी माई आंसर. समझे कि कैसे हमने इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस इंटरवल, आपको एक इंटरवल दिया हुआ है 1,2, आपको बताना है कि इसमें फंक्शन क्या होगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, रिमेन्स कांस्टेंट. सो पहली बात ये होती है कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए अच्छा खासा सा. और इंक्रीजिंग का मतलब होता है व्हेन योर फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 इट इज इंक्रीजिंग, बट व्हेन योर फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इट इज डिक्रीजिंग. And if it is equals to 0, then we can say it is constant somehow. It is neither increasing nor decreasing. But options क्या हैं? लेकिन अगर हम इस फंक्शन को देखें तो फंक्शन के हिसाब से फंक्शन है भाई मॉडुलस में, तो मॉडुलस के फंक्शन को आपका डेरिवेटिव तो निकाल नहीं सकते, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे अपने फंक्शन को करना पड़ेगा रीडिफाइन. जिसको मैंने पढ़ाया है, जिसको पता है कि रीडिफाइन का मतलब क्या होता है वो कर लेंगे, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा. रीडिफाइन का मतलब होता है कि आपको जो भी इंटरवल दिया है, मतलब आपको इंटरवल दिया है कि आपका जो वेरिएबल एक्स है
वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ना 1 की वैल्यू को अटेन करेगा ना 2 करेगा, उनके बीच की वैल्यूज को लेगा। सपोज मैंने इसकी कोई भी वैल्यू उठा ली 1.15, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आप यू कैन टेक, मैंने 1.5 लिया है, आप 1 और 2 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, एनी वैल्यू विच यू लाइक। तो आपके पास अगर हम इसको चेक करें क्वेश्चन को ट्वाइस करके, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँ 1.5, 1 और 2 के बीच में, तो ये वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे वी कैन ओपन दैट मॉड्यूलस साइन विद द स्मॉल ब्रैकेट विद द पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा रहने वाली है प्लस में, कभी माइनस में नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, इस मॉड्यूलस साइन की बात करें, तो यहाँ पे आप 1.5 रखिए, 1.6 रखिए, 1.7 रखिए, 1.8 रखिए, 1.2 रखिए, ये वैल्यू हमेशा हमेशा आपकी नेगेटिव में ही आएगी। आई होप आई एम क्लियर। और अब अगर ये आपने देखा, अब मॉडुलस हमारा हट चुका है यहाँ से भी और यहाँ से भी। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व इट। इट विल बी 2x minus 2 if you open the bracket, minus 3x, and this will give me plus 6, and if I'm not wrong, the value will be minus x plus 4. This will be your normal function, and which you can easily differentiate. Bacha, f dash will be nothing but equals to, I hope everybody is clear how to find out derivative. That is equals to minus 1, and if you see this value is always less than 0. इक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं आती, और आपको पता है कि जब वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका मतलब? इंक्रीज नहीं होता, क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होता है। सो दिस विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। सी देखना पड़ेगा आपको, ट्राई ऑलवेज यू डू वन थिंग, बिकॉज आप लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू देखा और तुक्का मार दिया कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है। प्लीज डोंट गो फॉर दैट। अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना भी पड़ रहा है, प्लीज डू। आपके क्वेश्चंस के करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां से, एंड व्हेन यू गो ओनली लुक फॉर द ऑप्शंस, वहां से आपके ऑप्शंस गलत होने शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाते हैं। सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे अगर बात करें, उसने बोला है कि एक सेट दिया है भाई, सेट ए। चलो सेट ए बना लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट आपको दिए हैं, ठीक है। और उधर उसने दूसरा एक और सेट दे दिया, सेट बी। सेट बी में बोल रहा है कि भाई कितने ऑप्शंस हैं? लेट्स सपोज 6 एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से समझिए। देन नंबर ऑफ बोथ 1-1 मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग आपको बतानी है। अब 1-1 और ऑन टू का मतलब क्या होता है? 1-1 का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट हर एक से जुड़ा होना चाहिए। 1-1 का मतलब, ऑन टू तो बाद में देखेंगे, 1-1 देख लेते हैं कि हर एक एलिमेंट एक से ही, एक की इमेज दूसरे की, एक एलिमेंट की दूसरे में प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर आप देखो, इसको हमने सबको यूज कर लिया, ठीक है। बट अगर इसकी बात करें, यहाँ पे वी हैव यूज्ड फर्स्ट 5, बट व्हाट अबाउट दिस वन? इसकी क्या गलती है बेचारे की? ये क्यों अकेला रह गया? और अगर ये रह गया, इसका कोई जोड़ीदार इधर नहीं है, इसकी शादी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये किसी को भी 1-1 नहीं होने देगा। इसने कसम खा रखी है कि मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं अकेला रह गया हूँ। समझे बात? Just joke apart. So this will not be 1-1 because every element of B is not assigned with the every element of A. तो अगर 1-1 नहीं है तो हम on to पे जाएंगे नहीं, और कोई भी 1-1 नहीं है तो option will be 0. This will be the correct option. I hope it's clear. Now move on to question number 6. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि सिर्फ ऑर्डर और डिग्री नहीं पूछा, उनका सम पूछा है। ऑर्डर आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर यहाँ की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर है क्या? यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है 3। और डिग्री की बात करें तो डिग्री किसकी देखते हैं? हमें कोई मतलब नहीं है, इधर डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। इसी हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखेंगे हम। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। तो आंसर किसका हो गया? इसका 1। लेकिन हमसे पूछा गया है सम, तो दोनों का सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4, एंड योर ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ फर्स्टली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन।
अब सॉल्यूशन सेट आपने क्या करना भैया, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपने, जो भी इक्वेशन आपने दी है 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्राफ बना के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्राफ किधर जाएगा, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में, अपर में, लोअर में, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना, जब जब सॉल्यूशन सेट चेक करना पड़े तो दोनों x और y जो भी आपके दिए हैं दोनों को 0 पुट करिए। 0 पुट करती है आपको पता चलेगा 0 ग्रेटर देन 3। 0 ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होता है, दिस वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज व्हाट, 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता, तो दिस वैल्यू इज फॉल्स। और हमने पढ़ा था, हम पढ़ते आ रहे हैं पहले छोटी क्लास से कि ट्रू का मतलब होता है कि ट्रू मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन। जब वैल्यू ट्रू आती है तो हम कहाँ शेड करते हैं, वी शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, और जब ये फॉल्स होता है तो हम कहाँ करते हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसमें आया है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि सपोज इसकी ये भी लाइन रही होगी, सपोज ये लाइन रही होगी, तो फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर का मतलब यहाँ कुछ इधर वैल्यू जाएंगी, कुछ इधर। तो अगर आप देखो वो हमसे ऑप्शंस पूछ क्या रहा है कि हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग। तो अब ये देखो जब शेड इधर होएगी तो क्या ओरिजिन तो ये रहा, ओरिजिन तो साइड में रह गया, तो क्या वो कवर होगा उसमें, नहीं होगा, तो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट। क्लियर, बेटर। now we move on to the next question. This is very simple. Now go on to the question number 8, जिसमें बच्चों को थोड़ी तकलीफ हुई थी, एक बार मैंने पढ़ाया था जब आपको दो वेक्टर दिए हैं और वो बोल रहा है कि ये जो दोनों वेक्टर्स है ना ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइड को, ए बी एंड ए सी। सपोज दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, दिस इज माई सी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या है ये j प्लस के, और ये वाला हो गया मेरा इधर वाला 3i माइनस जे प्लस 4k, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि हमें आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है कि जो सामने दोनों इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। नाउ सपोज दिस इज d, so we need to find length of this median. What will be length of this median? Can you find out? Ab can you find out the midpoint of this? What will be that? This is nothing but 3 by 2i. This factor AD will be what? क्या लेना है आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे i का कोऑर्डिनेट तो है लेकिन यहाँ पे i का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो 3 by 2i प्लस, अगर अब j का देखो j और j कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 0। अब बचा दिस 4k एंड दिस, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाए आपके पास 5k डिवाइड बाई 2। कैसे निकालते हैं मीडियन, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही होता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। द सेम थिंग वी नीड टू फाइंड हियर आल्सो, i, j और k के कंपोनेंट्स को ऐड करिए एंड डिवाइड बाई 2, यू विल हैव योर पॉइंट्स ऑफ मीडियन। ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। सो दिस विल, बट वो हमसे लेंथ पूछ रहा है, लेंथ का मतलब वी नीड टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, दिस विल बी 9 by 4 प्लस 25 by 4. I'm not right, if I'm not wrong, this will be root 34 divided by 2, and the correct option will be my option number 1. This is your question number 8. Okay, now move on to question number 9. The value of integral you need to find out. आप बोलोगे भाई वैल्यू ऑफ इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 1 मार्क में, वो भी इतना बड़ा, बाप रे कैसे होगा, हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इफ़ यू लुक फॉर द प्रॉपर्टीज, एक बहुत अच्छी छोटी सी प्रॉपर्टी है कि भाई कोई भी इंटीग्रल की वैल्यू अगर उसी वैल्यू माइनस से कहाँ पे है, उसी नंबर में प्लस से है, तो आपने एक सीधा सा सिंपल सा काम करना होता है, आपने चेक करना होता है यहाँ पे क्या, आपने x की जगह ना माइनस एक्स डाल के देखिए। अगर आपने x की जगह पे माइनस एक्स डाला और अगर आपका वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन बन गया, तो आंख बंद करके i की वैल्यू 0 लिख दीजिए। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया एंड यू हैव गेट द नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन, आपकी इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन विच विल डिस्कस लेटर एंड वी हैव डन ऑल्सो। फिर भी किसी को डाउट होगा तो हम दोबारा से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब यहाँ पे डाल के देखते हैं। अब हमारा fx जो है हमारे पास है x³
साइन ऑफ टू द पावर x दिस। तो क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से। चलो जी ये लिख लो, और ये हो गया साइन 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर करो तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, इसको बनेगा, हाँ अब साइन ऑफ माइनस एक्स होता है, लेकिन बेटा ये तो देखो कि पावर कितनी है, पावर इवन नंबर है। तो अगर पावर इवन नंबर है तो माइनस 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 और माइनस 4 बार, ये तो प्लस ही बना देगा। तो बन गया ये साइन टू द पावर 4x, एंड इफ यू सी अगेन दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ माई फंक्शन, सो आई कैन डायरेक्टली राइट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बी 0। हमें सॉल्व करना ही नहीं है, लिमिट पुट करनी नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है बाकी। सो द आंसर विल बी A. I hope again it's clear. Now move on to question number 10. This is very but obvious question. मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ, इसको आप करेंगे खुद से। आपको दिया हुआ है आपका 2 5 3 -2, और आप मुझे करके इसका आंसर भी बताएंगे, क्योंकि मैं इसको पूरा नहीं करने वाली। आपको सच दैट कंडीशन दी हुई है कि इनवर्स का मतलब है k टाइम्स a। आपको पता है इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है इस इज नथिंग बट फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स 2 3 5 -2 एंड दिस। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। निकालिए एडजॉइंट, निकालिए डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करिए, इधर को जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2k, इट विल बिकम 5k, इट विल बिकम 3k एंड इट विल बी -2k। दोनों को इक्वेट करिए और k की वैल्यू बताइए। I hope you can do this. All of our bright students, so everybody can do this. Now moving to question number 11, because this is very but obvious and very easy question, so I am leaving for you. Please tell me the answer of this question in comment section. Question number 11. The corner points of the feasible division for the LPP. अब इतने सारे कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। z आपको दिया है 4x + 6y, उसने आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया ऑलरेडी, जो आप निकालते हो ना सॉल्यूशन ग्राफ बना के, उसने ऑलरेडी दे दिया है। इट्स 0,2, इट्स 3,0, इट्स 6,0 एंड इट्स 0,5। तो आपने बताना है कि मिनिमाइज की मैक्सिमाइज, इट इज मिनिमम। वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। पुट करके देखते हैं पहले। 0,2 पे इट विल बी व्हाट, 0 प्लस it will be 12, यहाँ पे it will be again 12, here it will be 24 and it will be 30। तो अगर आप देखो कि दो पॉइंट्स पे मुझे मिनिमम वैल्यू बन रही है, एक 0,2 पे और एक 3,0 पे। क्लियर। तो अब ऑप्शन कौन सा लगाओगे। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन में तो ओनली भी दे रखा है, ये वाला ओनली, फिर ये वाला ओनली, तो कैसे कौन से वाला। लेकिन अगर हम देखें एक और दे रखा है कि यहाँ पे ये भी है और इन दोनों को यूज पे कुछ तो बना रहा है, वो मिड पॉइंट बना रहा है और एनी पॉइंट बना रहा है। ठीक है। अब आधे बच्चों ने मैंने देखा जब किया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोल दिया भाई मिड पॉइंट। क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि मिड पॉइंट होगा, लिखा है कहीं पे नहीं ना। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब आपको मिनिमम वैल्यू ही देंगे। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी सी। सॉरी, it will be any option, any point on the line segment joining the points 0,2 and 3,0। clear। so mid point की तो बात करनी ही नहीं है, तो ऑप्शन will be D correct, any point on the line segment, क्योंकि दोनों पे वैल्यू दे रहा है वो हमें मिनिमम। क्लियर। सो मिड पॉइंट की कभी बात नहीं होती, any point on the line segment joining the points 0,2 and 3,0। now move on to question number 12. projection of the two vectors, फर्स्ट वेक्टर ऑन द सेकेंड वेक्टर इज 4 यूनिट्स। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन अगर हम देखा जाए, प्रोजेक्शन ऑफ क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। देखो मैंने पहले भी बोला है, वेक्टर अलजेब्रा 3D ये ऐसे कोई चैप्टर्स है ना, इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस के। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू हैव ए ऑन बी। ए ऑन बी है, ये हो जाता है, लेकिन अगर ये उल्टा होता, बी ऑन ए हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पोजीशन चेंज होती, बी की जगह ए और ए की जगह बी। और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर का फर्क पड़ता है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं इसकी। तो क्या करना है हमने, जो दो, ये हमारा ए हो गया
ये हमारा फर्स्ट वाला ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, आई होप सबको करना आता है। आई कॉम्पोनेंट को आपको आई से मल्टीप्लाई करना है 2 लैम्डा, प्लस जे कॉम्पोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करना है जे इंटू 1, प्लस 3 को इससे तो 12, और नीचे आ जाएगा किसका मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले का। दिस विल बी 4 प्लस 36 प्लस 9, और ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 2 लैम्डा प्लस 18, and if I'm not wrong it will be 7 into 4 will be 28, so the lambda की वैल्यू आ जाएगी कितना, 10 divided by 2, and the correct option will be 5. And now look for the option, you have option number C as the correct option in your paper. Now it's very easy question. Now next question question number 13 की बात करते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं फिर से इसको होमवर्क में देने वाली हूँ, डोंट वरी। आपको ए दिया है, आपको बी इनवर्स दिया है। अब आप बोलोगे ए बी इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालें। भाई ए बी इनवर्स निकालने के लिए तो पूरा क्या चाहिए, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी इनवर्स की प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है, ये होती है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बी तो नहीं, आपके पास बी नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रॉपर्टी को यूज करिए। देखो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, बात रही इसकी। ए तो पता है ना, ए पता है, फॉर्मूला लगाइए इनवर्स निकालने का, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय दिस। यहाँ से इनवर्स निकालिए और सीधी सीधी वैल्यू पुट करके आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू विल हैव व्हाट, 4 - 3 - 5 4, और अगर मैथ्स ठीक हूँ, मुझे जितना आता है, आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 3, दिस विल बी -1, दिस विल बी -2, सॉरी -5 इंटू 2, एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी इधर ही आ जाएगा। दिस विल बी 37 -29, दिस विल बी -14, एंड दिस विल बी 11। सो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 37 इसमें आ रहा है, इसमें पर माइनस नहीं है, इधर आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। मैंने बोला था होमवर्क दूंगी, बट मैंने फिर भी कर दिया। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। इन ए हॉकी मैच, एक हॉकी मैच चल रहा है, चलो भाई खेलने वाले हैं। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गए हैं तो कोई बात नहीं, हॉकी मैच की बात कर लेते हैं। बोथ टीम्स ए एंड बी स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू एंड ऑफ द गेम। ठीक है, चलो एक हॉकी बना लेते हैं छोटी सी, मुझे ऐसे इस पे बन नहीं रही है अच्छे से, बोर्ड पे तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ। ये लो हॉकी बन गई मेरी, हॉकी। दिस हॉकी इज फॉर माही, शायद वो खुश हो जाएगी अपना नाम सुन के। इन हॉकी मैच बोथ टीम ए एंड बी स्कोर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डिसाइड करना है विनर को। तो रेफरी ने क्या बोला कि उनको एक डाई थ्रो करनी पड़ेगी, और जो भी जिसका भी पहले 6 आ जाएगा उसको हम बना देंगे विनर। ठीक है, और उसने बोला कि भाई टीम ए स्टार्ट करेगी, और लेकिन जीतेगा कौन, जीतेगा बी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, लेकिन जीतेगा कौन, कौन जीतेगा भैया, जीतेगा तो बी। इसका मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जिसका 6 आ गया वो जीत गया, और जिसका नहीं आया वो क्या हुआ, हार गया। तो इसका हो गया हारना, ये हो गया विनर, ये करेगा विन और ये करेगा, इसको लॉस हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 1 - 1/6 विच इज इक्वल्स टू 5/6। चलो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, शुरू करना है ए से, लेकिन भैया ए को जाना है हार, हारने का मतलब डैश, और उसके बाद जीत जाएगा बी। ठीक है, तो ये खत्म। लेकिन हो सकता है कि पहले ए हार गया, बी भी हार जाएगा, ए को भी दोबारा हारना पड़ेगा तभी तो बी जीतेगा। सिमिलरली अगर हम दोबारा से, एक और ऑप्शन हो सकता है कि ए हारा, जरूर थोड़ी कि एक बार में 2 बार में नंबर आ जाए, फिर बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए को हारना है तभी तो बी जीतेगा। पोजीशन विल बी ऑल्टरनेटली, देखो फर्स्ट अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब उनका हारना जीतना सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसकी कितनी प्रॉबिलिटी थी,
5/6, इसकी थी 1/6 प्लस इसकी कितनी होगी 5/6, इसकी कितनी होगी अगेन 5/6। ये तो b की है ना, इसका जब बार निकालोगे तो बार कितना हो जाएगा, बार विल बी 5/6। तो ये भी कितना 5/6 और लास्ट वाला 1/6। सिमिलरली 5/6 5/6 5/6 5/6 कितनी बार, 5 बार, और फिर आएगा 1/6। एंड इफ यू सी ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो बंदा जीत नहीं जाता। और अगर आप देखो तो ये एक जीपी है, जिस एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का मतलब होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का। जिसको नहीं पता है भाई वो लिख लो 1 माइनस आर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म विच इज 5 डिवाइड बाई 36, और नीचे आर का मतलब होता है कॉमन रेशो। ये आपको पता है, ये आपने जीपी में पढ़ा होगा। सो 1 माइनस कितना कॉमन रेशो है यहाँ पे देखो, ये तो ऑलरेडी आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों को छोड़ के दोनों ये बचे। सो 25/36 एंड इफ यू सॉल्व इट द आंसर विल बी 5/11। प्लीज सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सीधा लिख दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर। सो ऑप्शन विल बी सी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको वैल्यू बतानी है लैम्डा की जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। कब होते हैं भाई दो वेक्टर्स पैरेलल, वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब उनका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ऐसा क्या, नो जी नहीं, वेक्टर्स पैरेलल नहीं होते तब डॉट प्रोडक्ट जब 0 हो जाए। क्या हो जाएगा, होते हैं कि नहीं होते, ये आप मुझे बताइए। अगर आपने चलो डॉट प्रोडक्ट चलो 0 करके देखते, जिनको लगता है कि 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 14 और ये प्लस लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू -30 आ गई। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो समझे बेटा, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं होते। ठीक है, सो जस्ट कीप इन माइंड। बच्चे ना ध्यान से नहीं देखते हैं इसको। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि आई कोएफिशिएंट डिवाइड बाई जे, आई कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर विल बी इक्वल टू जे डिवाइड बाई दूसरे वाले का जे, और पहले वाले का k विल बी इक्वल टू द लास्ट वाले का k। ठीक है, अब अगर आप देखो दिस इज 3/2, दिस इज ऑल्सो 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। सो इक्वेट विद एनी ऑफ द लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3 एंड यू हैव दिस ऑप्शन वी हैव विच इज इक्वल टू 2/3। दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। आई होप अगेन इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ मूव ऑन टू, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हो गया है बस हमारा। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 16, मूविंग क्वेश्चन नंबर 16। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छे से मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिखाया है करना। कैसे करना है, dy बाई dx को क्या करना है आपने, अकेला बनाना है। अकेला कैसे बनाएंगे, सॉरी इसकी बात करते हैं dy बाई dx की। Just 1 second. Sorry, we are talking about the question number 16. This is equals to what? We are given plus. Let's suppose we'll do this again. dy by dx का आपके पास जो भी कोएफिशिएंट है आपने उसको बना देना है 1। इसका मतलब उस कोएफिशिएंट से आपने बना दे डिवाइड कर देना अपनी पूरी इक्वेशन को। 2 log x डिवाइड बाई x log x। अब राइट हैंड साइड में क्या है, वी आर नॉट अबाउट सपोज टू बॉदर, हमें सिर्फ देखनी है इस वैल्यू को, जो जिससे कि हमें अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब p dx क्या होता है, p वो होता है हमारा जो भी y का कोएफिशिएंट होता है, कुछ भी हो x y z कुछ भी हो, हमारे पास जो भी y का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा p होता है। वैल्यू पुट करिए, ये होगा dx अपॉन x log x। इंटीग्रल सबको करना आता है। अगर आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, log x को t पुट कर दीजिए, पुट योर log x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू t। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू dt बाई dx, लेकिन dx को ले जाना है ऊपर,
तो dx बाई x हो जाएगा dt। तो अगर आप इसको सॉल्व करें यू हैव इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, देखो ये चीज वैल्यू क्या दे देगा पूरी, ये तो बन गया dt और इसकी वैल्यू आ जाएगी नीचे t और यहाँ से बन जाएगा e टू द पावर, इसका इंटीग्रल क्या होता है log t। अब जिसको नहीं आता वो मेरे से मार खाएंगे। log ऑफ, और t की वैल्यू आपने वापस पुट कर देना विच इज ऑफ व्हाट log x। अब तो एक सिंपल हो गया यार, कितनी बार बताया e टू द पावर log का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना बन गया log x। अब ऑप्शन ढूंढ लो जरा, ऑप्शन 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 ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। क्लियर, डन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से। इंटीग्रल आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर x, जिसका आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव सबको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तब आप क्या करते हैं, हम लेते हैं भाई लोग लेते हैं बोथ साइड्स, सिंपल सी बात है। लोग, देखो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ फिर से रिवाइज करूंगी बिफोर बोर्ड एग्जाम, अभी मैं क्वेश्चंस हैं इसलिए बस बता दे रही हूँ कि होता क्या। दोनों साइड लोग लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वल्स टू y ऑफ, y ले लेते हैं, अभी इधर मान लेते हैं x, तो अपने क्या करते हैं log y इज इक्वल्स टू, अब पावर है जब log की तो log की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर आगे आ जाती है और वी सॉल्व लाइक दिस। दो फंक्शन हो गए, एक हो गया अलजेब्रा, एक हो गया log। अब इसका हमने करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा y डैश और ये दे देगा। अब लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को रखना ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड को रखना वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा और इसकी हमें जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए y डैश। इसको ले जाएंगे इधर पे और y की वैल्यू थी क्या, y की वैल्यू जो थी उसको वैसे रहने दो, क्वेश्चन x में था तो x में चाहिए, अंदर बचेगा 1 प्लस log x आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए x टू द पावर x ऑफ 1 प्लस log x। देखो ये इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है पर मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पुट दैट इक्वल्स टू योर फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0। अब इसको जब 0 रखा तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है वो सब चली जाएगी उधर, तो पूरी हो जाएगी 0 और 1 प्लस log x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब हमें निकालना है x, तो log x की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि सबको उधर ले जाओ, x चाहिए सिर्फ। और अगर ये है, इसका मतलब जब इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e बनेगा, log बन जाता है, जब log लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है तो e बन जाता है। तो x 1 e टू द पावर इनवर्स आया तो इसका मतलब होता है 1/e, तो x की वैल्यू आएगी 1/e। और आप ढूंढ लो अपना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका, a नहीं है, b नहीं है आपके, सॉरी b है आपका, b है आपके पास। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियोज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियोज। अब बोलेंगे भाई मैडम ने बताया था कि एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होते हैं ना उनको उठा के रख देना, डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं। बताया तो था, पर एक बात और बताई थी कि थोड़ा सा ध्यान से स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लो बेस। इसको आप नहीं बोल सकते यहाँ से आंसर 3, 6 और 1। पता है आप ये करके आओगे, आप पता क्या करके आओगे, आंसर 3 लगा के आओगे, इसका 6 लगा के आओगे, इसका कोएफिशिएंट लगा के आओगे -1। 3, 6 और -1 और ये लगाती हो जाएगा गलत। यस, ये 2 वाला तो ना कोई सोचेगा भी नहीं कि सी और डी में, तो कोई सोचेगा भी नहीं कि हो सकता है। ट्राई करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस a1 x1 डिवाइड बाई a, सॉरी, एंड दिस इज y माइनस y1 डिवाइड बाई b एंड दिस इज इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। क्लियर। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, इसका मतलब ये है कि x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए। इसका मतलब मैंने उसे कॉमन ले लेना है। बात समझ में आई, ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2/6 और इसको जब कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन, अकेला तो है बट माइनस का है। अब ऊपर भी कुछ नहीं चाहिए, तो ऊपर भी कुछ नहीं चाहिए तो इसको लेके आना पड़ेगा आपको कहाँ, नीचे। और नीचे लाओगे तो इसको भी नीचे, ये लो, और इसको भी नीचे, तो ये हो जाएगा -1। और डायरेक्शन रेशियोज नीचे वाले तो होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखो अभी है 1/3, 1/6 और -1। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 1/, नहीं है कहीं पे भी, सब होल नंबर है। तो क्या करना है आप इनको होल नंबर बना लो जरा। एलसीएम लेना आता है, कैसे लेते हैं एलसीएम, 6 लेंगे नीचे, ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -6। अब दिख रहा है क्या हो सकते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज, कुछ दिखा, यस
सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, जो आप सोचोगे भी नहीं. So this is question number 18. Now move on to question number 19 and 20. Assertion and reasoning question. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बताइए. We have the differential coefficient of secant tan inverse x with respect to x is x upon under root of 1 minus x square. बताइए ये ट्रू है फॉल्स है. मेरे हिसाब से तो ये ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है. मेरे हिसाब से फर्स्ट वाले का ऑप्शन होना चाहिए ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा. अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाए इसका मतलब नथिंग बट कि आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है. आई एम रिपीटिंग, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, रीजन जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है और दोनों चीजें करेक्ट हैं और रीजन भी करेक्ट है. तो ऑप्शन होगा इसका ए. ए विल बी द करेक्ट आंसर. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड दिस आपको दे रखी है ये वाली. तो आपने बतानी है क्या ये सही है या गलत है. अगर आप देखो ये चीज गलत है मेरे हिसाब से. ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज गलत है. क्यों गलत है बताओ आप. मेरे हिसाब से ये चीज गलत है. ये सही है, ये फॉर्मूला सही है कि 2 पॉइंट से जब लाइन पास करती है तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है. और अगर ए कभी फॉल्स हो जाता है तो ऑप्शन कौन सा होता है. ऑप्शन होता है डी. देखो असर्शन रीजनिंग करना ना बहुत सिंपल सा तरीका होता है. अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं ए बी सी. अगर ए बी सी तीनों देखो, ए बी और सी तीनों में ना ए ट्रू होता है. पहले सबसे पहले ना ए को चेक करना. अगर ट्रू है तो आप ए बी सी में जाना. लेकिन अगर गलती से भी ए फॉल्स निकल गया तो सीधा सीधा आपका डी ऑप्शन हो जाता है और आपको आर को दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि ए फॉल्स का ना एक ही ऑप्शन होता है. हाँ, अगर वो ट्रू है तब हमें थोड़ा सा उसमें देखना है. क्लियर. सो दिस वर द 2 क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजनिंग. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन बी. बस 5 क्वेश्चंस और बाकी हैं, देन वी आर डन विद द सेक्शन बी. और इसका नेक्स्ट वाला हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस थोड़ा कवर करेंगे. चलिए फटाफट से कर लेते हैं. हमें दिया है दोनों करेंगे दिस और वैल्यू निकालनी है इसकी. ठीक है, और की बात बाद में करेंगे. अब देखो ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म बना के कितनी है 3 पाई बना रही है. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पाई होगा. इट कैन बी पाई, इट कैन बी पाई, तभी तो जाके 3 पाई बनेगा भाई. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉस इनवर्स अल्फा होगा वो भी पाई होगा, आपका जो कॉस इनवर्स बीटा होगा वो भी पाई होगा और आपका जो कॉस इनवर्स गामा होगा वो भी पाई होगा. और अगर ये पाई है तो अल्फा की वैल्यू होगी कॉस पाई. इधर लेके जाओगे तो कॉस बन जाएगा और अल्फा पाई कॉस आई की वैल्यू क्या होती है -1. सिमिलरली बीटा भी -1 और गामा भी -1 और पुट कर दीजिए जिसमें चाहिए. -1 ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस ऑफ -2 एंड -1 ऑफ -2. सो आपके पास क्या बचा 2 -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगी 2. आई होप आई एम क्लियर. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. परेशान घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. क्या करना है अगर बात करें इस क्वेश्चन की और वाले की, रिड्यूस करना है. देखो वैसे ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज का, इनवर्स की जो आपके आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है. ठीक है, and according to the latest CBSE sir curriculum they have deleted this portion but I don't know why they have given this question in the sample paper. तो सीधी सी बात है, अगर ये सिलेबस में नहीं है सैम्पल पेपर में है सो नो नीड टू वरी, नो नीड टू बॉदर. अगर ये बोर्ड में आया तो डेफिनेटली आपके हक में जाएगी बात और आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे. आप अटेम्प्ट करो चाहे ना करो. आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है. ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इसको ऑलरेडी डिलीट कर चुका है, अब वो इसका क्वेश्चन नहीं दे सकता. हो सकता है कि पेपर किसी और ने बनाया है, उसको करिकुलम नहीं पता है. दैट कैन बी द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, सो जस्ट बी क्लियर अबाउट इट. अगर फिर भी आपको करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूंगी. ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. फर्स्ट वाले की बात करते हैं.
टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या मतलब है इसका कि भाई आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल उसने दे दी, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अ फिक्स्ड बेस, बेस को उसने कर दिया फिक्स। चलो भाई बेस को हम फिक्स कर देते हैं, ये तो बेस फिक्स हो गया हमारा। वो बोल रहा है कि जो साइड्स हैं वो क्या कर रही हैं, विद फिक्स बेस दे आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3। लेट सपोज ये हमारी साइड हो गई, अब डिक्रीज कर रही हैं और रेट दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वो टाइम का फैक्टर है यहाँ पे, तो dA/dt, और माइनस हो रही है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसने बताया, पूछ रहा है वो मेरे से, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग, मतलब एरिया जो होगा वो हमारा फैक्टर होगा, जो हमारा फंक्शन होगा। हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस। उसने हमें स्टेशनरी पॉइंट ऑलरेडी दिया है कि साइड ए और बी बराबर है, तो बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज माई डी, तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, बी सी इंटू ए डी। चलो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो भी अच्छी बात है, पढ़ लो। 1/2 बी सी की वैल्यू कितनी है बी, और ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये बी है तो ये कितना हुआ, क्योंकि आइसोसेलेस है ना भाई, तो b/2 और यहाँ से ये वैल्यू कितने देगा ए डी, ये देगा b²/4, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अब बस आपने इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 b इंटू कितनी हो जाएगी, 1/2 a² - b इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो b की वैल्यू क्या है, b तो कांस्टेंट है क्योंकि दिया हुआ है ना b फिक्स्ड बेस, तो b तो कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a dA/dt, क्योंकि ये जो a डैश है वो है dA/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसमें आपने a और b को बराबर रख देना, गेट योर वैल्यूज, और आपके पास क्या आ जाएगा, देख लो कि हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग। और अगर आप बोलोगे इसमें तो कहीं नेगेटिव का साइन दिख नहीं रहा तो डिक्रीज कैसे करा, भाई साहब जब आप dA/dt की वैल्यू को पुट करोगे तो दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू है, तो ये तो माइनस तो ऑलरेडी आगे आ ही जाना है, 3b/2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, a और b की वैल्यू हो जाएगी सेम, सो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² ही हो जाएगी, b²/4 इंटू, और a की वैल्यू कितनी है, फिर से b, देख लो हो गया नेगेटिव, नेगेटिव होते ही क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। सो हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा बी में, फाइन। अगेन आई एम गिविंग अगेन दिस एज अ होमवर्क, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मेरे से मत करवाओ, खुद से भी ट्राई करो। वॉल्यूम दे रखा है, इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे, प्रूव करना है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द साइड। अगर मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर आपसे नहीं होता है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका क्वेश्चन इसको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में भी। चलिए फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपको दिया है a + b + c 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 है, b का है 5, c का है 7, आपको a और b के बीच में बनाना है, भाई एंगल कितना बनेगा। चलो देखो और तो कुछ नहीं दे रखा, जो दे रखा है ना उसी से शुरुआत करते हैं, a + b को बराबर ले जाते हैं -c के, क्योंकि और तो कुछ नहीं कर नहीं सकते, यही कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आएगा, वेक्टर a + वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस बना देगा प्लस, और ये स्क्वायरिंग का मतलब होता है मॉडुलस, सॉरी मैग्नीट्यूड, ये आपको पता है। इसको जब आप खोलेंगे तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, दिस, इसकी आइडेंटिटी होती है ये, प्लस ट्वाइस आएगा साथ में, डॉट प्रोडक्ट आएगा भाई दोनों का, याद रखना, इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखें ये आएगी 9, क्योंकि इसकी है सिर्फ 3, स्क्वायर करोगे तो 9, ये वाला ये कितना देगा, 25 प्लस ट्वाइस ऑफ, अब डॉट तो दिया नहीं है तो डॉट की वैल्यू क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 49। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा,
a इंटू बी, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू है 49 माइनस 34 के विच इज इक्वल टू 15 if I'm not wrong. Yes, so this will be give me what 5, ये बनेगा 3 और ये 3 से भी ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो cos थीटा की वैल्यू बनेगी 1/2. आप मेरी कैलकुलेशन से मत जाइए, अपना करिए सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए करने का. और वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे होती, सॉरी π/3 पे होती है विच इज 60 डिग्री. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपना आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, समझाने में टाइम लगता है और सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन. एक लाइन दे रखी है आपको विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5, इन दोनों के बीच में ना 5 यूनिट का डिस्टेंस है, 5 यूनिट का, और यहाँ पे एक पॉइंट है 1 3 और 3. ठीक है, अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट. ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तो 10th में पढ़ा था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. दिस यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड. मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं. चलिए अब आप बोलोगे मैडम ये वाला पॉइंट तो पता है, ये वाले पॉइंट का क्या करें. अरे भाई निकालो ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये का क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस x1 डिवाइड बाई a. तो ये जो x1 होता है यही तो हमारा पॉइंट होता है, तो यहाँ से कितना पॉइंट आएगा, ये -2 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए और ये प्लस है, तो प्लस कैसे बनेगा, माइनस माइनस करके ना, या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा. देखो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है, अब ये जब आपको दे रखा है सो x प्लस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2. अगर वहां से भी निकालना तो आप यहाँ से भी सीधे सीधे निकालो. चलो अगर आपको वो नहीं आता, टेक दिस इज इक्वल्स टू सम लैम्डा, क्योंकि सब बराबर है. अब यहाँ से एक जनरल पॉइंट निकाल लो, x इज इक्वल्स टू व्हाट 3 लैम्डा माइनस 2. इक्वेट करिए इसके साथ, अब इसके साथ करिए y को, तो y विल बी 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 लैम्डा प्लस 3. तो जनरल पॉइंट्स आ गए हमारे पास अब 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 3. ये हमारा एक पॉइंट हो गया. और यहाँ से लेके एक दूसरा पॉइंट है 1 3, एक बार मेरी लाइन सीधी बनी है, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 का. अब तो निकाल सकते हैं कैसे, 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर. और आप ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, और इस आपको दे रखा है किसके इक्वल है 5 के, तो स्क्वायर रूट को दे ले जाए, ये बन जाएगा 25. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखना, लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से एक क्वाड्रेटिक आएगी और उस क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आएंगी, सॉरी उस क्वाड्रेटिक की आपकी दो वैल्यू आएंगी 0 और 2. याद रखना, आप 0 को इग्नोर नहीं कर सकते, 0 को इग्नोर करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. और लैम्डा की वैल्यू आने के बाद फिर आपकी जो लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद पॉइंट्स भी आपके 2 ही आएंगे. ठीक है, 2 ही पॉइंट्स आपके आएंगे, एक ऑप्शन नहीं लगा सकते आप, ऑप्शन नहीं है ये नहीं बता सकते. अगर आपने एक लिखा तो आपके मार्क्स उसमें कटेंगे. सो बी क्लियर अबाउट इट. नाउ द मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन ए. फाइंड एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व. अब देखो, अब बहुत सारे लोगों को ना कर्व बनाना नहीं आता. मैंने एक क्लास में बताया था अपनी में, जब मैंने पढ़ाया था, आपको कैसे पता चलेगा. देखो ये तो पता चल रहा है कि पैराबोला, पैराबोला किधर बनेगा, x पे, y पे, z पे. अब देखो 4x, जो भी एक्सिस अकेला दिख रहा हो ना, जैसे यहाँ पे y के साथ तो क्या स्क्वायर दिख रहा है, जो भी लीनियर एक्सिस दिख रहा हो मतलब अकेला एक्सिस, जैसे x एक्सिस, x भी कैसा है पॉजिटिव का, नेगेटिव साइन नहीं है, तो उसी एक्सिस पे बना दो ग्राफ. सॉरी लाइन टेढ़ी होगी ना मेरी, रुको जरा थोड़ा सा. ये लो, ठीक है, अब डोंट माइंड, तो भाई हो जाता है कभी कभी. तुम लोग तो ना, एक तो ना ये मुझे पढ़ाने नहीं देता. इरेजर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको. चलो अभी इरेजर नाचती रहेगी इधर.
पेन भी दे दो भाई पढ़ाने के लिए। चलो चलिए और लाइन दूसरी कहाँ पे, y एक्सिस पे और y इक्वल्स टू 3 पे। y इक्वल्स टू 3 पे कहाँ बनेगा, y इक्वल्स टू 3 तो ऊपर ही बनेगा ना, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू 3 का। तो अब उसने बोला एरिया बाउंडेड, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। हालांकि मैंने बोला था ट्राई ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज, लेकिन अब एरिया बन रहा है y पे तो कैसे बनाएंगे। तो अगर आप देखो ये पॉइंट कितना है, ये तो ओरिजिन हो गया 0,0 और ये पॉइंट जब 3 है तो ये भी कितना हुआ 3 का ही रहेगा ना, x ही तो चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी सम x, मुझे x से कोई लेना देना नहीं कितना है। तो एरिया जब निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, हाँ तो मैं क्या बता रही थी, तो एरिया निकलेगा 0 से लेके 3 पे, और 0 से लेके 3 पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम ये पैराबोला को कंसीडर कर रहे हैं। तो पैराबोला की क्या इक्वेशन दे रखी है, अब ले किस पे रहे हैं, y एक्सिस पे, तो इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के में करेंगे। और अगर इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन भी किसका होना चाहिए, इसमें ही होना चाहिए। तो यहाँ पे x dy रखेंगे आप। सो इंटीग्रल 0 to 3 इट विल बी y स्क्वायर dy विच इज इक्वल्स टू y स्क्वायर का सबको आता है y³ 3 0 to 3। लिमिट को पुट करिए जरा, 1/3 बाहर, इधर आ जाएगा 27 माइनस 0, ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ठीक लिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज 27 डिवाइड बाई 3 एंड द आंसर विल बी 9। प्लीज़ कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ओ दिस इज हाँ x करिए 4 आएगा बेटा यहाँ पे। सो थोड़ा सा ध्यान से, वही मैं बोल रही थी, मैं कई बार गड़बड़ कर देती हूँ। 1/4 चलिए, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4 और ये 4, तो आंसर आपका आ जाएगा इधर से 9/4। वही मैं देख रही थी, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। चलिए, सो इट विल बी, आंसर विल बी 9/4 स्क्वायर मीटर्स। यूनिट प्लीज जरूर लिख, स्क्वायर यूनिट्स नॉट मीटर्स, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। स्क्वायर यूनिट लिखने से ना एक पता चल जाता है कि आप क्या फाइंड आउट करते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राफ थोड़ा बहुत इजी है। अगर अकेला देखो, अगर सिर्फ अकेला मैं आपको बता देती हूँ, एक स्लाइड में बता देती हूँ, दिस इज क्लियर। देखो चलो, अच्छा लगे तो जिसको आपको ज़रूरत है प्लीज़ उस तक पहुंचा दीजिएगा। आप लोग भी दोबारा से देख लीजिए जिसने नहीं किया है। देखो मैंने बताया था, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है y इक्वल्स टू -4ax, या हो सकता है, अब x स्क्वायर में भी हो सकता है, इट विल बी 4ay, या फिर ये हो सकता है x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो जो भी आपको देख रहे हो, जो भी अकेला दिख रहा है, जो भी अकेला दिख रहा है आपको, ये अकेला है, ये है, तो जो भी अकेला एक्सिस दिखे ना, उसी एक्सिस पे अपना ग्राफ बना दो। अब इसके अगर देखो तो ये माइनस का है, तो माइनस का है तो उल्टा बना दो। अब इसमें अगर देखो तो y दिख रहा है, तो इसका मतलब y पे अकेला ऊपर बना दो, और इसका मतलब तो ये उल्टा ये पे। देखो ग्राफ बनाना कितना इजी है इसका। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेगा भाई, मेरी लाइनों को मत लेना, ओरिजिन से पास करेगा, और जो भी एक्सिस अकेला दिख रहा हो उसी के पास ये ग्राफ बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। जितने भी क्वेश्चन समझाएं सबको समझ में आ गए होंगे। नहीं आता है प्लीज़ दोबारा से देखिए, समझिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, प्लीज़ टेल मी द नेक्स्ट वीडियो, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेक्शन C एंड D, द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जिसमें कि हम इसको कवर करेंगे। तब तक आप इसको ट्राई करिए। सेक्शन C एंड D ऑल्सो यू कैन ट्राई। कोई डाउट्स होते हैं, देखो अगर कर लिया है अच्छी बात है, मैच योर आंसर्स विद मी, एंड अगर नहीं होता है तो आप प्लीज़ डू वॉच and solve your queries. Thank you so much. Now good night.